faculty members, and distinguished guests. It is an honor to welcome you all in AICTE Training and Learning at an Academy-sponsored one-week faculty development program. It is an honor to welcome you all in AICTE Training and Learning Atal Academy sponsored one-week faculty development program on smart manufacturing and engineering management in the era of Industry 4.0 Day 4 organized by Mechanical Department. Today, we all are gathered here for the plenary session of Dr. Mahesh Shukla sir on the topic Lean Manufacturing, Six Sigma and Agile in Industry 4.0. Before starting with the session, I would like to invite Dr. R.K. Bhamani sir, HOD of Mechanical Department to present sampling to Dr. Mahesh Shukla sir. It is a privilege to introduce Dr. Mahesh Shukla sir, a highly accomplished academic researcher and industry professional with nearly 3 decades of rich experience spanning academia, research and industry. Dr. Shukla holds an exceptional academic profile with 2 PhD degrees, one in mechanical engineering and other in business management, both from Nagpur University. He also possesses an engineering and another in business management from both Nagpur University. He also possesses an MTech in mechanical engineering production, an MBA and a PG in diploma in industrial management, all secured with first class distinction reflecting his strong enterprise in engineering, management and industry practices. With over 21 years of teaching experience, Dr. Shukla had taught a wide range of subjects in mechanical engineering, production management, marketing, and management studies. He has served in key academic leadership roles, including Associate Professor and Head of Mechanical Engineering and Dean, contributing significantly to academic planning, acceleration, and institutional development. Complementing his academic excellence, Dr. Shukla brings more than 7 years of industrial experience with reputed organizations such as Tata AIG Life Insurance, Yes Bank Insurance, Anand Rathi Limited, where he had senior leadership positions in sales, marketing, business development, and relationship management, providing him with valuable real-world industry insights. Dr. Shukla is a prolific researcher with 67 conference pages, 12 international journal publications, 8 published patents, and 9 book chapters, including publications with Taylor and Francis and CRC Press. He has received multiple Best Paper Awards, completed 10 NPTEL courses with top rank, and frequently served as a resource person and keynote speaker in national and international academic forums. In addition to his academic and professional achievement, Dr. Shukla has contributed extensively to Nagpur University through roles such as BUS member, subject committee member, and academic audit committee member, actively shaping curricular and academic standards across multiple engineering disciplines. With his unique blend of technical expertise, management, research orientation, and industry exposure, Dr. Mahesh Shukla is an inspiring academic leader and an invaluable resource for faculty and students alike. We are honored to have Dr. Mahesh Shukla sir with us today. With this, I would like to hand over dice to Dr. Mahesh Shukla for the session.
First of all, I want to thank Bhavane sir, Anjikar sir, sir, Murulia sir, my friend Mende sir, Ranjit Patil sir. They are all my friends. Two of Ranjit Patil sir, Mende sir, and sir happens to be my colleague also. This was this came as a surprise to me when I was invited as a speaker for this session, and with a topic which I also was like boggled. एक साथ चार कैसे? Now I would be speaking on the topic Six Sigma, then agile manufacturing. So what happens कि इसके ऊपर मैंने 2 PhD की Six Sigma के ऊपर, और मैं आपको बताने जाने वाला हूँ. हालांकि मेरे को बहुत कुछ समझा नहीं है, तो समझाने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि we kept learning about Six Sigma, और जब से हम लोग इंजीनियरिंग में आए हैं तो प्रोडक्शन में एक ही वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो होता है प्रोडक्टिविटी. कई लोगों को एक फ़र्क समझ में अभी तक नहीं आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड हाउ इट इंटरफेयर्स विद प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्शन इसको बोलते हैं हम लोग कि आप बना क्या रहे हो, और प्रोडक्टिविटी उसको बोलते हैं हम लोग कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं. इफ इट इज एक्सेप्टेबल इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. And if you are only producing it, it may not be acceptable or not be up to the standards. जैसे जैसे जो टॉपिक, any questions you can ask after my गलत हो सकता है मेरा, बहुत दिनों से मैंने पढ़ाना छोड़ के रखा हुआ है, but कुछ याद है. And being into the role of a teacher for almost 21 years and 7 years in industry, and now I am looking after the placements, so you can understand what type of भाई वैसे लगा कॉलर पे रहेगा तो अच्छा रहेगा. नाउ am I audible? Yes. So I will keep it very simple. और मैंने बहुत कुछ चैट जीपीटी से लिया है. तो आपको चैट जीपीटी से मैंने क्यों लिया है, उतना टाइम नहीं था उसको वे करने के लिए, पर क्योंकि आई नो समथिंग अबाउट, सो आई उसको ऑर्गेनाइज करके लाया. और क्योंकि यहाँ जो भी ऑडियंस है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर और अवेयर कि आप लोगों को इन वर्ड से टर्मिनोलॉजी की मीनिंग समझते हैं, पर जैसे जैसे इनके टर्मिनोलॉजी क्लियर होते जाएंगे अपना क्लास भी वैसे जैसे खत्म होती है. इसमें आपने अगर तीन चीज़ देखी है तो ऊपर में लिखा है लीन मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सिक्स सिग्मा, तीसरा है एजाइल, और चौथा है इंडस्ट्री 4. ये चारों अलग अलग वर्ड्स हैं, और इन चारों को हमको कहीं ना कहीं क्लब करके एक साथ लेके आना है, और ताकि एक आपका सेशन खत्म हो जाए, लंच पर जाए. ठीक है, एक बार आपको एक खत्म हो गया तो आगे में भी वेरी एक्साइटेड कि नाउ वी कैन गो फॉर लंच. ठीक है, आफ्टर दिस. तो जो टॉपिक है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इन द एरा ऑफ इंडस्ट्री 4. वर्ड स्मार्ट, हु इज स्मार्ट? जो कुछ करता नहीं उसको बोलते हैं स्मार्ट. कुछ करता नहीं मतलब वो काम कर भी गया पर उससे हो भी गया पर पता भी नहीं चला, उसको अपन बोलते हैं स्मार्ट. आप लोगों ने एक नया ब्रांच देखा होगा आजकल जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वेल यू आर नॉट रिक्वायर्ड बट यू हैव मेड अ ब्रांच. कि अब तेरी जरूरत नहीं है, उसका ब्रांच मैंने खोल दिया. आगे में ये जो इंडस्ट्री 4 है एक और डेंजर बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू इवन टेक द जॉब्स ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर कॉलेज, इन योर कॉलेज, इन माय कॉलेज. क्योंकि बच्चों को वही चीज बार बार रिपीट कर करके, आप देखो अगर आपने चैट जीपीटी में कोई चीज डाला एक्सप्लेन मोर एक्सप्लेन मोर एक्सप्लेन मोर, तो और धीरे धीरे वो बारीक बारीक करते हुए आता है और आपको और इजी लैंग्वेज समझाते हुए आता है. सो दे वोंट बी नीडिंग एनी टीचर्स इन फ्यूचर. कॉलेजेस ऑप्शनल हो जाएंगे, और जो ब्रांच खत्म होने वाले हैं उसमें सबसे पहला ब्रांच होगा मैकेनिकल. एंड व्हाई? द रीजन इज वेरी सिंपल. No more requirement of people in the industries. They will be required only for research work. For research in like कि अगर आप लोग देखते हुए पेपर लिखते हैं तो आप लोग कई बार देखते हैं मैक्सिमम पेपर थर्मल एरिया से आते हैं. जो प्रोडक्शन के पेपर्स आ रहे हैं वो केस स्टडीज आ रहे हैं. तो केस स्टडीज जो भी आते हैं प्रोडक्शन में, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू सिक्स सिग्मा या इंडस्ट्री.
अब इसमें जाओ बेटा नेक्स्ट तेरे पास पहला वर्ड है लीन। आप यह मतलब समझ लीजिए, व्हाट इज लीन? मेकिंग थिंग्स विद लेस वेस्ट। व्हाट इज वेस्ट? आप लोगों को एक बात को समझना पड़ेगा, वेस्ट किसको बोलते हैं? एक होता है स्क्रैप, एक होता है वेस्ट। स्क्रैप यानी क्या और वेस्ट यानी क्या? स्क्रैप कैन बी रीवर्क ऑन, उसको वापस से क्या कर सकते हैं आप? यूज में ला सकते हैं। जैसे आप लोग आलू छीलते हो, आलू का छिलका वेस्ट है क्या? कि केले का छिलका वेस्ट है? मेरी बात समझ में आ रही है? जिसको बाद में आप यूज नहीं कर पाओगे उसको आप बोलते हैं वेस्ट, जिसको आप वापस से यूज कर पाओगे उसको आप बोलते हैं स्क्रैप। तो जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें स्क्रैप में मिलती है। दे आर नॉट वेस्ट, दे कैन बी रिसाइकल्ड। कचरे के डब्बे आपके जो भी आप ये जो बॉक्सेस लेके आते हैं काय में खाने के लिए या उसमें, वो स्क्रैप है कि वेस्ट है? जब उसमें सामान निकाल लिया आपने तो वो स्क्रैप हो जाता है। बाद में आप उसमें अपना लेडीज है सांभर का पाउडर, इडली का पाउडर, इसका पाउडर मसाला रखते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं इसको। तो जो लीन है, लीन मीन्स मेकिंग थिंग्स विद लेस वेस्ट। ठीक है, इसके बाद अच्छा इसका एक छोटा सा एग्जांपल, बस ऐसे होगा सिंपल। मेक सैंडविचेस ओनली व्हेन अ कस्टमर ऑर्डर्स। सेकंड पॉइंट, कीप इंग्रेडिएंट्स क्लोज एंड ऑर्गेनाइज्ड। तीसरा है रिमूव एक्स्ट्रा स्टेप्स दैट स्लो यू डाउन। आप लोगों को मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ पर आपको सोचना है इस पे। ये जो पॉइंट नंबर 2 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीपिंग इंग्रेडिएंट्स क्लोज एंड ऑर्गेनाइज्ड? व्हाई? हमारा टाइम से हो जाए। आंसर नहीं दे तुम्हारा आंसर मेरे को पता है, आपको पता है। मेरे को 1 घंटे के लिए बुलाया, मेरे को बोलो ठीक है, आप सिर्फ सुनो। ठीक है बेटा, आपने बोला क्लोज, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इससे ऑपरेट कर रहा हूँ, क्या मैं क्लोज हूँ? क्या मेरा काम हो रहा है? हाँ या नहीं? Do I need a person to operate? No. Do I need extra efforts? No. This is what is called as productivity. It saves resources, it saves time, it saves efforts, it even saves manpower. आप जब क्लोज रखते हो तो आप लोगों ने देखा है आपके घर में ऐसा कितने लोग हैं जो घर के किचन के ऊपर के ड्रॉवर में एक बोरी चावल रखे, वहां क्या रखेंगे आप लोग? कप बशी राइट साइड में रखेंगे पूरा का पूरा। आपके घर में एक लेआउट फिक्सेशन है। ये अगर आपका स्टोव है तो आपके राइट हैंड साइड में आपके ठीक ऊपर में आपका ये मिर्ची धनिया ये जो कुछ भी रखना है वो रखते हैं आप। क्यों? क्योंकि आप पुल करते हो। क्या करते हैं आप? पुल। इस पुल के लिए पहले वो वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। उस अवेलेबल के लिए पहले आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, उसके लिए आपको एक डेटा मेंटेन करना पड़ता है जो आप अनकॉन्शियसली करते रहते हैं। और यही काम हमारे इंडस्ट्री में भी होता है। वो पहले सोच लेते हैं कैसे। आपके घर में सब लोग, आपने कभी एक छोटी सी इंडस्ट्री बताता हूँ मैं आपको जो आपने शायद देखा है या नहीं देखा है, वो है चाय का ठेला। क्या वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है? चाय की दुकान में प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या वहां मशीनरी है कि नहीं? आपने स्टोर देखा होगा। क्या वहां पे इन्वेंट्री कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या वो दूध एक दिन पहले ला के रखता है? क्या वो दूध एक दिन पहले ला के रखता है कि उसी दिन सुबह लेके आता है? क्या वो अदरक एक दिन पहले ला के रखता है कि उसी दिन लेके पहले लेके आता है? क्या चाय पत्ती और शक्कर एक दिन पहले लेके आता है कि 1 हफ्ते पहले ही चलता है? क्या वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका एक डब्बा छोटा सा? क्या वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है? क्या वहाँ मटेरियल हैंडलिंग हो रही है? अरे हो रही है कि नहीं? क्या वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? पर आपको बड़ी इंडस्ट्री देखना है, आपको अपने बाजू में जो हो रहा है वो देखना है। वहाँ पर उसका एक लेआउट फिक्सेशन भी है, वहाँ पे सफाई भी हो रही है, वहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है और वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल भी हो रही है। आप लोगों ने हल्दीराम की जो ये है क्या बोलते हैं इसको, काजू कतली कब से खाना शुरू किया है?
सबसे पहले वो क्या उस दिन से लेके आज तक उसका टेस्ट चेंज हुआ है? क्या उसका टेक्सचर चेंज हुआ है? क्या उसका बाकी जगह काली पत्ती खाई तो ढीली पड़ जाती है, पर इसकी कभी नहीं पड़ेगी किसकी? और आप खाते नहीं बताएंगे ये हल्दी रंग की, ये कैसे मालूम पड़ता है? आपको ये अनुभव है कितने सालों का? और उन्होंने उस कंसिस्टेंसी को, क्योंकि वहां पर ये काम मैनुअली नहीं होता, ये काम कैसे होता वहां पर? मशीन से। उन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स को पहले से ही बना के रखा है, उनको पता है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन कब कहाँ और कितना रिक्वायरमेंट रहने वाला है। ये हम लोग इसको बोलते हैं की इंग्रेडिएंट्स। कौन से वाले? जो भी की है उसको अपने पास रखिए, पास का मतलब अपने जेब में मत रखिए, इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ से उसको ऑपरेट करने में इजी। इसी से चलता है प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कई बार सेम सीमेंट की बोरी आपको 300 रुपए की मिलेगी और वही सीमेंट की बोरी 350 की मिलेगी। 350 की बोरी आपको कहाँ मिलेगी पता है? जब आपके पास में है। और 300 ही कहाँ मिलेगी? जब आपको जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो if the things are made available to you at the point where you require it, it will be more costly। आपने ब्लिंकिट देखा है? 50 रुपए का दूध 125 का बिल, ये 150 रुपए का बिल 150 रुपए का बिल, क्योंकि उन्होंने बोला है 150 के ऊपर नो चार्ज। Am I clear? तो पहला है लीन में क्या होता है? कीप इंग्रेडिएंट क्लोजर ऑर्गेनाइज्ड, रिमूव एक्स्ट्रा स्टेप। चाय बनाते हैं सब लोग, क्या जितनी भी लेडीज हैं, जेंट्स तो आटे ज्यादा बनाते हैं, लेडीज कम बनाती है। मेरे को सुबह उठते साथ ही भाई कुछ भी नहीं करते, बर्तन कौन धोएगा? अच्छा चाय कैसे बनेगी? एंड मेरी मतलब शी लव्स मी लाइक योर स्टूडेंट्स लव मी। आपके बच्चे आपको कितना प्यार करते हैं? 5 बजे का अलार्म लगा देना तो 7 बजे स्कूल जाने का, पहला 15 मिनट डाली खाने का रहता है, बाद में काम। ये कितने लोगों ने चाय बनाते वक्त कभी सोचा है कि पहले पानी डालो कि दूध? कई बार जब आप पानी पहले डालते हो और दूध भी डालते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि चाय कम बन गई, कप में कम हो गई, पानी उड़ गया था, आप समझे नहीं। पहले दूध डालिए, समझ रहे? अदरक कब डालिए? जब दूध गर्म हो जाएगा फिर चाय फट जाएगी। कितने देर पकाने हैं? अगर 2 कप चाय को 5 मिनट लगते हैं तो 10 कप चाय को कितने मिनट लगेंगे? 50 मिनट। तो वैसे खड़े हो गए। फ्लेम की क्वालिटी आपको शायद नहीं पता है। आपकी जो गैस का जो ये आता है उस पर नंबर होते हैं, और कई बार आप लोगों को जिस प्रकार के ये मिलते हैं क्या सिलेंडर्स जो गैसेस मिलते हैं, अगर गैस क्लियर बोलूँगा उतना अंदर नहीं आता उसके, उसका भी नंबर अलग अलग है। तो आप बोले बहुत देर से पक रहा है, खाना ही नहीं बन रहा। कई बार डोसा बनाते हो आप, डोसा चिपकता है ना पहले नॉन स्टिक वाले में, फिर आपको आवाज आती है मेरे घर वालों पर डोसा बना रही है और वो जला वाला पति को मिल रहा है टुकड़ों में, ठीक है? दूसरा सही से बोल रहे हो बात कैसे पता? कम टू माय हाउस, यू अंडरस्टैंड? वाइफ्स आर वेरी ब्यूटीफुल। परफेक्ट, नो डिफेक्ट्स। वो लिखा है वेरी सिंपल वर्ड, क्या लिखा है? नो डिफेक्ट्स। यानी 10 मिलियन और 1 मिलियन अगर तुम बना रहे हो उसमें केवल 3.4 डिफेक्ट्स भी परमिसिबल है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? इसको हम 6 सिग्मा बोलते हैं। कौन सा लेवल बोलते हैं हम लोग? कि 10 लाख बनाया आपने और समझो 10 लाख ऑमलेट बनाए, उसमें केवल 4 ऑमलेट ही आपको डिफेक्टिव अलाउड है, और बाकी कैसे होना चाहिए? उतने परफेक्ट। कितने परफेक्ट? कि सबके टेस्ट सेम, सबके साइज सेम, सबके टेक्सचर सेम, सबके कलर सेम एंड सो। कैन यू मेक इट? कैन यू अचीव इट? देन बाय दिस। This is how to achieve it.
दिस कैनॉट बी अचीव। जिसने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है उसको ये पता है कि हर ऑपरेशन के पहले टूलिंग करना पड़ता है, और जब टूलिंग करने के बाद सेटिंग होती है तो उसके बाद उसमें ट्रायल रन्स लेना पड़ता है, और जब ट्रायल रन्स लेते हैं हम लोग तो कम से कम 4-5 डिफेक्टिव तो निकलते ही निकलते हैं, और हर 100 के बाद हमको टूल चेंज करने पड़ता है। तो अगर आप 100 में 4 डिफेक्टिव निकाल ही रहे हो तो आपको 10 लाख में 4 का सवाल नहीं उठता है। परंतु क्या वो लेवल पे हम पहुंच सकते हैं क्या? कौन से वाले लेवल पे? 3.2 डिफेक्ट्स इन 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी दैट इज गिवन टू यू। एग्जांपल बाद में देखेंगे। अप्रोच 6 सिग्मा का मतलब 6 डेविएशन। मैं आपको इसका लेवल बताऊंगा कि डेविएशन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। अप्रोच क्या है? चेक व्हाई इट हैपेंस। दूसरा है कॉजेस। ये पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट में कुछ फर्क है क्या? मैंने पहला पॉइंट लिखा है व्हाई इट हैपेंस, एंड सेकंड पॉइंट है मिडिल इज व्हाट आर द कॉजेस। आर दे सेम? व्हाई ने कॉज हुआ, फिर दो शब्द अंग्रेजों ने क्यों बनाया? व्हाई भी बनाया और कॉज भी बनाया। क्यों? व्हाई ने क्यों, और कॉज मतलब क्यों हुआ। आप समझ में आ गया? क्यों डिफेक्ट हुआ और क्यों हुआ। इसको व्हाई और हम क्या बोलते हैं? कॉज। बहुत शब्दों को पकड़िए, आपके सारे रिसर्च पेपर तो शब्दों पे ही खेलते हैं। आप क्या बोलते हो, शब्द तो वही है, रखे कहाँ हैं देखिए, आपकी जिंदगी बन जाएगी या बर्बाद हो जाएगी। वही शब्द इधर की इधर रख दिया तो आपकी जिंदगी बन भी जाती है। और क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? फिक्स द कॉज। हम लोग इंजीनियरिंग में एक बहुत क्लियर कट बात करते हैं, चेक द कॉजेस नॉट द इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? चेक द कॉजेस। अगर आपने क्या चीज गड़बड़ कर सकती है उसको पकड़ लिया है तो उसका इफेक्ट अच्छा ही है। मैं आज सुबह मेरे बेटे के लिए डोसा बनाया, ऑफकोर्स मैं बनाता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ जब बनाती है वो बहुत अच्छा बनाती है, मैं बनाता हूँ तो अच्छा बनाता हूँ। चिपक रहा था वो, फ्रिज से निकाला था, एकदम जमा हुआ था, पत्थर बन गया था आइस। उसको 6 बजे निकाला और 9 बजे बनाया। 9 बजे आपको आना था, मेरे को अपना ज्ञान आपको देना था, ठीक है। तो वो जो डोसा है तो अच्छा बना। क्यों? कि मैंने तभी यूट्यूब पे देखा कि तवे के ऊपर नमक डालोगे, नमक डालने से आपका जो भी मॉइस्चर है वो क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर तेल डालो, तेल को उसकी चिकनाई डालेगा, फिर पानी डालो, पता करने मेरे घर में धुआं हो धुआं आजू बाजू वाले लोग आए मेरे को पूछे क्या हो इतनी आग मिले भी नहीं किचन मेरे नहीं मुझे किचन में देखा आप नहीं लेती। ओके कंटिन्यू। मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा उसका पापा कहते दो मेरे को जला हुआ, ठीक है। वहाँ लिखा है, वहाँ पे लिखा है फिक्स द कॉजेस। क्या प्रॉब्लम है? टेम्परेचर कॉज है, यूज टाइमर्स, स्टैंडर्ड्स। कई लोगों को आज तक टेम्परेचर और हीट में फर्क समझ में नहीं है। फॉर देम टेम्परेचर इज सेम एज हीट, हीट इज डिफरेंट, टेम्परेचर इज डिफरेंट। क्योंकि आप सब टेक्निकल लोग हैं तो आप लोगों को इनका फर्क समझना चाहिए। अगला, मेकिंग प्रोसेसेस सो गुड दैट मिस्टेक्स आर वेरी रेयर। हम लोग, आप लोगों को एक किताब का नाम देता हूं मैं, SPC नाम है उसका, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ए जयदी का बुक है, आपके लाइब्रेरी में है या नहीं मुझे पता नहीं, बट इट्स एक्सीलेंट बुक ऑन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। उसमें ये पहला ही वाला चैप्टर है, कौन सा वाला? बोला ऊपर में क्या लिखा? प्रोसेस। वो बोलते हैं प्रोसेसेस आर जीनोफ्रेनिक। जीनोफ्रेनिक का मतलब होता है समय के साथ साथ आप डेविएट होना शुरू होते हैं। उसका कोई भी कारण, आपके घर में
आप जब नया कुकर लेके आते हो नई बीबी जैसे शांत स्वभाव की सौम्य आदर्श है ना, वैसे पति वैसे बाद में उसकी मालूम पड़ता आफ्टर द हीट खाना पक रहा है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे प्रोसेसेस दे डेविएट, तो हमेशा पूछते हो कि प्रोसेसेस को ठीक कैसे रखें, क्या इंस्पेक्शन करेक्ट तरीका है या प्रिवेंशन करेक्ट तरीका है। तो आप ध्यान रखिए, इंस्पेक्शन कब होता है, जब ये कांड हो चुका है। हम भी रहे हुए, हम लोग आपको हमेशा सबसे ज्यादा दुश्मन आपके को तो आपके एचओडी, उसका दुश्मन कौन, एनबीए का आप समझ रहे बात को। आप अपने घर की परेशानी भी आप चलाते, आप वैसी परेशानी तो देख खुद को भी नहीं पता कैसे क्या कर रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ठीक है ऐसा नहीं करता वैसे तो बेचारे हमारे साथ में प्रतिशत, ठीक है। हम लोगों को देखो मेहंदी लगा है, उसके ऊपर फिर इंडिगो भी लगा, वो मोर तरीके नीले नीले बाल पहली बार देख रहा हूँ। ये सब चलता रहता है। तो प्रोसेस को ना आप लोग क्या करना, जब प्रोसेस आप चेक करते हो तो इसमें ना कंट्रोल आपको ना वहां पर एक ऐसा लेते हैं टॉलरेंस, एक होता है कंट्रोल। आप रोड पे जाते हो, रोड पे मीडियम बने हुए और लाइन, आपको कहां चलने के लिए बोलते हैं, कीप लेफ्ट, हमारे ऐसा इंडस्ट्री में नहीं चलता। काम कर रहा हो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनको कंट्रोल लिमिट्स में ही काम करना पड़ता है। इसलिए वो क्या बोलते हैं कि कंट्रोल लिमिट्स में ही काम करो। अगर आपका कॉलेज में आने का टाइम 8:50 है और 9:10 तक आ सकते हो, तो आपके एचओडी तुरंत बोलते कि नहीं तेरा आने क्या होते हो और क्लोज आते हो किसके, 9 बजे के। आप समझ रहे। फिर आपके प्रिंसिपल साहब बोलते नहीं वैसा नहीं, तुमको 8:57 को आना है और 9:02 के पहले आना है, तो आप और 9 बजे के बीच में आते हो। इससे क्या होता है कि अगर आपका प्रोसेस थोड़ा डेविएट भी हुआ तो आप कंट्रोल लिमिट तक पहुंचोगे, उससे भी बाहर चले गए तो आप कहाँ पहुंचोगे, टॉलरेंस लिमिट। इसीलिए जब ये जो यूएस वालों ने जब इनको ऑर्डर दिया था, इनको टोयोटा वालों को, कि भाई हमको ये पार्ट बना के दो विद ±5% ये क्या होते हैं फेलियर एक्सेप्टेबल, तो वो अलग से बना के दिया करते हैं इनको। ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है, मेरे टीचर बोलते थे, मुझे लगता नहीं मेरे को ऐसा कि लगता फेक रहेगा कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, 6 सिग्मा क्वालिटी लेवल मीन्स एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी विथ ऑलमोस्ट। सर आपके कॉलेज में बहुत सारे बच्चे आते हैं, टीचर से, लैब से, कोर्स से, यहाँ का एनवायरनमेंट से, द नॉलेज दैट इज इम्पॉर्टेंट से। यहाँ पे भी आप आपके स्पीकर साहब पिछले 4-5 दिन झेल रहे हैं, सब आए, आपको पढ़ा के गए, बता के गए, समझाए गए, आपको कुछ भी नहीं समझा बताया हुआ, फिर भी बात अलग है, एकदम सर्टिफिकेट थी। जब हम जाएंगे तो हमारी किताब में लगाया जाएगा, बर्न फास्ट। कबूल डालते ना टीपी पेपर तो पगार देते नहीं है, 5 मिनट 8 सुन लेगा जो बच्चा कर लेगा, ठीक है 5 मिनट सुन लेगा, ठीक है।
वो आपको सिग्मा दिख रहा है? सिग्मा का मतलब है डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। व्हाई डू यू, ये जो आरएमएस वैल्यू आते हैं ये एरर पे आते हैं, है ना? स्क्वायर क्यों करते हैं? देखिए प्रश्न में सिंपल है, हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर सबको आता है। व्हाट इज दिस स्क्वायर? आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। व्हाट इज दिस स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर? इधर का जो स्क्वायर है, इधर का जो स्क्वायर है, दोनों को ऐड करके इधर का स्क्वायर बनता है। आप लोग आरएमएस वैल्यू को हमेशा स्क्वायर क्यों लेते हैं? रूट मीन स्क्वायर। आप जब भी एरर को स्क्वायर करेंगे तो एरर इज इन परसेंटेज, इट विल कम एज just square it. Will the value be more or less? If you square 0.3, the answer will come less than 0.3. Then square again. That we need to understand. ये जो deviations हैं, तो हम लोग deviate करते हैं, इससे क्या ये possible है क्या? आप क्या करते हो? थोड़ा सा deviate करते हो. क्या करते हो? ये मीन लाइन है, ये टॉलरेंस है, इसके बीच में क्या है? कंट्रोल। आप यहां तक जा सकते हैं, इसके बाद वापस से आपको प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए आपसे लिमिट पे ऑपरेट कर रहे हैं, टॉलरेंस लिमिट, तो द आंसर शुड बी कंट्रोल। अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को, वैसे अपने बच्चों को बाइनोकुलर से नहीं देखा, कैसे नहीं देखा, तो आपका बॉस आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देख, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है क्या है। डेविएट आप गए, और हमारे लाइन में तो और ज्यादा परेशानी है, क्योंकि अब सरकार ने लड़कियों को फ्री कर दिया है। बहुत लड़कियां आएंगी, वुमेन्स कॉलेज लिखेंगे सारे का, अभी लिख लेना 70-70% 80% लड़की तैयार नहीं, अभी नहीं है, पहले ही नहीं थी, अभी कहाँ से देंगे? अभी तो पूरी फीस गवर्नमेंट में देना। देखो वो दिख रहा है आपको, मैंने सब पढ़ा दिया है। क्या नहीं, सबसे नीचे का लाइन क्या है? T2 4 डिवाइस आगे आप कंप्लीट है, तो सी सिग्मा बोलो, मैं आपको सिर्फ ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है ना? कभी आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सबने पढ़ा? सभी ने पढ़ा। व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? क्या दिखता है हमेशा? बेल शेप। ये बनता कैसे? आप आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलिए मैं एक जनरल एग्जांपल दूं। जब भी कोई चीज आप स्टार्ट करते हो तो उसके बेस्ट कंडीशन पे स्टार्ट करते हो कि उसके वर्स्ट कंडीशन पे स्टार्ट करते हो? बेस्ट कंडीशन। वैसे हम लोग जब कटिंग करते हैं ना, तो हम लोग एग्जैक्टली उसके वहां पे रख देगा 20 प्लस माइनस 0.5, 20 प्लस माइनस 0.5। ये क्लियर? 20 प्लस माइनस 0.5 का मतलब होता है 19.5 एक्सेप्टेबल है और 20.5 एक्सेप्टेबल। अगर हमने कटिंग टूल रखा, कटिंग टूल, और आपको सभी लोगों ने कम से कम ये तो किया ही होगा, क्या बोलते फर्स्ट ईयर में लेट का था, तो आप लोगों ने वहां से कुछ चिप निकालते हुए देखा होगा। चिप में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर एक दो ऑपरेशन चलते रहते हैं। कौन से वाले? एक तो बोलते हैं टर्निंग का, है ना, जिसमें आपके चिप निकलते रहते हैं। उसको 19.5 पे रखना है कि 20 पे रखना है कि 20.5 पे रखना है टूल को काटने के लिए? क्या लगता है? 19 मैं क्या 19.5 पे रखना है, 20 पे रखना है कि इस पे रखना है? किस पे? 20। कटिंग टूल है, वो काट रहा है, टूल खराब होने वाला है। जैसे जैसे टूल खराब होते जाएगा आपका डायमीटर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। आप समझ गए मेरी बात? आपका डायमीटर बढ़ते जाएगा। कटिंग टूल का अगर ऊपर का जो टिप है उसमें अगर थोड़े थोड़े या वेयर एंड टेयर शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली डायमीटर बढ़ता है।
तो एग्जैक्टली मीन पे रखोगे कि लोअर कंट्रोल पे रखोगे कि अपर कंट्रोल पे रखोगे? यू आर सर, हमको लोअर कंट्रोल रखेंगे 19.5 पे। जैसे जैसे डायमीटर टिप कटते जाएगा, डायमीटर क्या होते जाएगा, बढ़ जाएगा। कब तक चलाएंगे ये? 21। ये सब बातें वहां पे। तो आप क्या करते हो, इसको ऐसे इसको नोट कर दिया करिए। लाइन ऐसी रहती है, अपर कंट्रोल एक होता है बीच में मीन लाइन, और नीचे होता है लोअर कंट्रोल। तो जब आप टूल लगाते हो तो जैसे डायमीटर बढ़ना शुरू होता है तो वो ऐसे 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 आपको ना रीडिंग देगा। ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आए? मतलब तो समझ में आए? और जब इसको घुमा दे आप कैसे, ये पार्ट दिख रहा है आपको ऐसे, इसको अगर घुमाया आपको वो बेल दिखता है। दिख रहा हो बेल आपको? अभी ध्यान से देखिए, आपको बेल दिखेगा। बेल मतलब घंटे, हाँ हमारे घंटे, वो दिख रहा है आपको? बेल शेप ट्रायंगल दिख रहा होगा। अगर आप उसको ठीक से अगर ये चेक करें, इसमें है क्या वो? यस सर। राइट, ये देखिए, इसकी ध्यान से देखिए, ये दिखता है। और ये इधर नहीं जाता, कभी इधर नहीं जाएगा, कभी ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग पहुंचते ही, हम लोग क्या करते हैं, नीचे तक पहुंचते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल लिमिट पे फिर से उसको ठीक करते हैं। एक बार वो लिमिट से बाहर जाना किया तो वापस से क्या होगा, नीचे के लाइन पे कभी भी बेल शेप आपको दिखेगा नहीं। नीचे का जो लाइन है ना, ये लाइन, कौन सा लाइन, ये लाइन दिखता ना, ये दिख रहा है, ये कभी भी इसको टच करते हुए दिखेगा नहीं। ये चीज आपको समझना पड़ता। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्वालिटी पे काम करते हैं, आप लोग भी क्वालिटी पे काम करते हैं। हमारे इंजीनियरिंग की क्वालिटी है भाई, मैकेनिकल वाला। हमारे बहुत सारे गुरु रहे, अलग अलग जनरेशन में रहे। आप लोगों को 3 शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। एक होता है मैनुअल, एक होता है मैकेनाइज्ड, और एक होता है ऑटोमेटेड। क्या ये शब्द तीनों आपको पता है? व्हाट इज मैनुअल? कौन आ गया? बड़ी बड़ी कंपनी के लोग बोलते हैं। ठीक है, हमारे ना अलग अलग गुरु हैं, ये क्वालिटी के गुरु है। एक वर्ड मैंने आपको पहले बोला था कि एक होता है, हम लोग बोलते हैं इसको मैकेनिकल, लोग खुद ही करते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है मैकेनाइज्ड। ये 3 शब्दों का आप जिसको मीनिंग समझता है, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे थर्मल वाले लोग, रेडियामेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबार, कई लोग इंजीनियर बनने के बाद भी उनको समझता नहीं है, लेकिन तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इससे, क्योंकि वो खुरमी के बुक में रहता है, बल्लानी के बुक में रहता है। दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो। वैसे ही जब भी पढ़ाई करने का आप लोगों को, तो ये 3 वर्ड में पता है। मैनुअल वर्ड है कौन सा? व्हाट इज मैनुअल, व्हाट इज ऑटोमेटेड एंड व्हाट इज मैकेनाइज्ड। ऑटोमेटेड मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड, वेयर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन। मैकेनाइज्ड में दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका मैनुअल एज वेल एज मशीन दैट यू कैन टेक केयर ऑफ। एंड मैनुअल मींस टोटली मैनुअल। आप लोगों ने पहले के जमाने में देखा होगा कि कोल्हू के बैल देखे होंगे ना, तब के खेतों में, वो टोटली मैनुअल था। बाद में आप लोगों ने देखा ट्रैक्टर है, आदमी चला रहा है, उसको अपन बोलते हैं मैकेनाइज्ड। और अगर अपन बोलेंगे कि अब सीधा आप लोग बैठे हो, जैसे आजकल गाड़ी चलाते हैं ना ऐसे, तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे AGVs वगैरह है ना, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स, वो खुद ही चलते रहते हैं, नो नीड ऑफ मैन पावर। तो इसको हम बोलते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक। अलग अलग अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लोग जो जिन्होंने लिखा हुआ है वो अपने एरा में लिखा हुआ है, जब या तो मशीन्स थे नहीं। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब ये जो एक इंजीनियर है, कौन सी इंजीनियरिंग है अपने यहाँ, जिसको वो स्टडी टाइम स्टडी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक वो वर्ड है, उसमें ना आप लोगों को ये दिखेगा टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे। वो टाइम स्टडी, एक आदमी कितना बना रहा, रेट ऑफ प्रोडक्शन, एक आदमी का, अच्छा पहले क्वालिटी का मतलब भी था कि उसमें एर्गोनॉमिक्स बहुत था, उसमें कलर का बात था, उसमें एनवायरनमेंट की बात थी, उसमें टाइप ऑफ वर्क था। टाइप ऑफ वर्क भी बड़े अच्छे अच्छे वर्क करते थे, क्लीन वर्क, हैजार्डस वर्क, डर्टी वर्क, ऐसे वर्क, वेट वर्क, हॉट वर्क, हम लोग सुनते थे पहले भी, हमको समझ भी नहीं था।
बाद में समझ में आया कि ये सब चीज़ें, पर जरा ध्यान से देखिए, जब ये लोग गुरुज लोग ये पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे, बोल रहे थे, तो उस क्षण, उस वक्त, उस पल, उस समय आप लोग को उसको समझ में आता होगा कि उस समय एनवायरमेंट कंडीशन कुछ प्रॉब्लम करता होगा, इससे प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो रहा होगा, उस समय ठंडी बहुत हो रही होगी। मैं एनवायरमेंट का मतलब अलग होगा, क्लाइमेट का मतलब अलग होगा। क्लाइमेट इज डिफरेंट फ्रॉम एनवायरमेंट। अभी अपन जिस एनवायरमेंट में बैठे इसमें क्लाइमेट का कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। क्लाइमेट इज डिफरेंट, क्लाइमेट इज कोल्ड, एनवायरमेंट इज सूटेबल। कि आप सब लोग अच्छे से बैठे हो और जंगल को सुन रहे हो, शांत है, आवाज़ नहीं आ रही है, लाइट अच्छी है, इसको अपन एनवायरमेंट बोलते हैं। सब यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मेरे को सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं, बात दूसरी, ठीक है। पर आप सोचिए बात, क्या जब ऑटोमेशन होगा तो क्लाइमेट कोई काम करने वाला है क्या? कलर कोई काम करने वाला है क्या? क्या काम करने वाला है ऑटोमेशन में? केवल लेआउट। क्या काम करने वाला है? जब जहाँ पहले बड़ी बड़ी कंपनीज हुआ करती थी, बड़ी बड़ी, अभी भी उतने ही मशीन्स रहेंगे, पर दे विल वर्क एट ए वेरी फास्ट और रिलायबल रेट। और जो डिपार्टमेंट गायब होने वाला है वो है क्वालिटी डिपार्टमेंट। ये जो चीज़ें इतनी पढ़ाई गई है ये पूरी गायब। क्यों? एरर बनेगी। जब एरर बनेगी ही नहीं तो क्वालिटी कंट्रोल पढ़ते क्यों हो तुम लोग? तुमने ये टॉपिक रखा ही नहीं अपने एफडीपी में। अरे जब इतना ऑटोमेटेड है, you are giving the instructions 24 hours the machines are going to run without error, there won't be any something called as accuracy, there will be precision इसलिए क्योंकि अब सब कस्टमाइज होने वाला है। आपके चश्मे आपके चेहरे को दिखेंगे, वो वहाँ बैठाएंगे, खटाक से आपका एक फ्रेम आता है, वो चश्मा बन के बजा है, तो वहाँ एक्यूरेट नहीं बनने वाला, क्या बनने वाला है? प्रिसाइज। तो आप जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी है, तो एक्यूरेसी नाम की चीज खत्म, क्योंकि एक्यूरेसी मींस स्टैंडर्ड्स। कपड़े, अभी आप जाते हो जूते लेते हो, बहुत सारे लोग अमेजोन से खरीदते, उनको पता है कि फ्री का आप ले मिल रहा है, तो 9 नंबर का भी जो आता है 10 नंबर का ले लेते, सस्ते में करके। अब ऐसा नहीं हो, आगे से अमेजोन में भी आपको जरूर ये चीज मिलेगी कि आप अपने पैर का साफ माप दीजिए, आपको मेरा जूता उनके घर पहुंचे। उनके स्टोर में क्या है डजंट मैटर, व्हाट इज गोइंग टू मैटर कि व्हाट आपने क्या डिमांड रखा है। आप धीरे धीरे देखिएगा, आपको सारे जोमेटो वाले, स्विगी वाले सब है, पूरी जॉब्स आर गोइंग टू बिकम बिग प्रॉब्लम। मोदी इज वर्किंग ऑन दैट, एआई लाना की नहीं, आपके सारे काम ऑटोमेटेड हो जाएंगे। जब ऑटोमेटेड होएगा तो कहीं से भी गलती के चांसेस है ही नहीं। जब गलती के चांसेस है ही नहीं तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रहेगा नहीं, डांटेगी किसको आप? अरे क्वालिटी कंट्रोल वालों का तो यही काम ना, उनका प्रोडक्शन वालों की गलती ढूंढना। उनको बता के परेशान हो जाता है कि भाई तेरा काम गलती ढूंढने का नहीं है, तेरा काम ये है कि गो एंड टेल देम कि व्हाई द प्रॉब्लम इज कमिंग, हाउ इट कैन बी करेक्टेड। इंस्टेड उनकी अपेक्षा करते इसके चूहे भी नहीं लगे, इसके प्रोफेशनल प्रॉब्लम। अब प्रोफेशनल वाले आस्ते लेते क्यों? तेरे को जॉब नहीं है, मेरे पास रहेगी। हाँ समझ गए बात को। नेक्स्ट ये सब क्या है, ये जो कहानियाँ लिखी हुई है सब की लिखी हुई है जब मैकेनाइज काम थे, जब मैनुअल काम थे। जहाँ ऑटोमेटेड आएगा वहाँ पर कहीं पे भी एरर आने की संभावना नहीं है। नाउ यू कैन रीच 6 सिग्मा लेवल्स, इवन 3.4 डिफेक्ट्स विल नॉट बी परमिसिबल। ऐसे हुआ रोबोट को पकड़ 3.4 डिफेक्ट हुए, मैंने 6 सिग्मा पढ़ाया करके दे आर नॉट परमिटेड, ठीक है। तो ये लोग हैं, इनके नाम थे इनके शिवर्ड, डेवी, ड्यूरैन, ठीक है। तो क्रॉसबी, शिगावा, टाकुची, बहुत किताब पढ़ी हमने, एमटेक किए, पीएचडी तक किए, डिग्री मिली, प्रमोशन मिला, जो कुछ नहीं मिला वो पैसा, ठीक है। और इनके टूल चार्ट, ये सब के सब आपके वार्डरोब के अंदर में आने वाले हैं, obsolete। ये क्या है ये? And even if the courses are being run by your college with all this nonsense, remove it immediately because they are of absolutely no use। क्योंकि अब रिसर्च पे काम चले, डॉक्टर्स रहेंगे नहीं। आप लोग अभी हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे, अभी लोग 50-55 के उनके निकल गए, तो छोटे छोटे डॉक्टर से दुकान वाले
डॉक्टर ये डॉक्टर वो, आजकल मिलते नहीं, आगे बढ़े भी नहीं मिलेंगे। आपको जाके बैठ तबीयत खराब लगेगी, फटक से पीन गई इधर, ऐसा खून नहीं किया, दवाई बाहर, ठीक है ना। और दवाई भी कैसे आपके डॉक्टर कर देंगे, आप जाइए, आपको रिपोर्ट्स लाइए, दे सिट एंड दे एनालाइज एंड आउट ऑफ द एनालिसिस दे प्रिस्क्राइब कि आप ये दवाई लीजिए। वो इतने परफेक्ट डेटा में रहेंगे एलएलएम के कारण कि आपके कौन से खून के एक बूंद से वो 50 बीमारियों को एनालाइज करके आपकी बीमारी कौन सी है, उसकी दवाई कौन सी है, उसकी कंपनी कौन सी है, उसके रेट्स कौन से हैं, कंपोजिशन से है आपकी नहीं, और फटक से आपको वही कि उसके बाहर निकल गया जाएगा। कहाँ पर डॉक्टर भी गए, तो क्या डॉक्टरी खत्म की क्या इंजीनियरिंग है, आपको क्या लगता है? तो आपको कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग अब एआई में काम करना शुरू कीजिए, इसके ऊपर यू कीप फीडिंग मोर डेटा whatever is available and you create more data that can be done by research। तो आपको ग्रांट भी मिलेंगे, आप जब प्रोजेक्ट पे काम करते हो आपके पेटेंट ही बनते हैं, और उसके कारण आपके प्रोजेक्ट बनते हैं और आपके पेपर ही बनते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी नौकरी ही बचती। बस ध्यान रखिए कि जितने स्पीड से आप जा रहे हैं सब जा रहे हैं, तो ये हो बेटा हायर प्लेस। तुरंत जब मैंने ये बहुत पढ़ा, इसका समझा, तो मैंने एक चीज समझा, कौन सी बात, ये लाइन छोड़ देनी चाहिए, और कहाँ चला गया फिर प्लेसमेंट। इनको पढ़ाने का मतलब क्या है, बच्चों को क्या काम करना है, जिसका आपको यूज ही नहीं है, किसी चीज का, क्वालिटी डिपार्टमेंट का, क्वालिटी कंट्रोल का, लेवल सिग्मा लेवल का, क्योंकि आप सब चीज कस्टमाइज बना रहे हैं। अगला ये काम है मेरा जो पीएचडी है, प्रोडक्शन में जो क्वालिटी के टूल्स रहते हैं, क्या उसको सर्विसेज में भी यूज कर सकते हैं? क्या किसमें यूज कर सकते हैं हम? प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्ट हो गया, सर्विसेज का मतलब मैं आपको दे रहा हूँ तो आप ले नहीं रहे, ले भी रहे। इंश्योरेंस, बैंकिंग है, ये सब सर्विसेज में आते हैं। ये कर रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, खाना, ये जो जोमेटो वाले हैं, स्विगी वाले हैं, उबर वाले हैं, सभी लोग क्या में आते हैं, सब लोग वो आपको कार्ड नहीं देते, आपको सर्विस देते। क्या देते हैं आप लोगों को? सर्विसेज। क्या वो जो प्रोडक्शन के क्वालिटी कंट्रोल टूल्स थे, कैन दे बी यूज्ड इन सर्विसेज? और अचानक मेरे को बहुत जगह से न्योता मिलने लग गया, भाई कि पहले तो मेरे को मेरा पीएचडी के लिए ओके ही कर रहे थे, वो पहले क्षीरसागर से हुआ करते थे डी, उनको समझे ना, तो बोले सिक्स सिग्मा इन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, व्हाट नॉनसेंस। बोले इंश्योरेंस का मैकेनिकल से क्या लेना देना है? फिर उनको बताना पड़ा, साहब ये जो नॉलेज है कोई एरिया में आप अप्लाई करते हो उसको पीएचडी बोलते हैं। पीएचडी कोई कोर्स नहीं, आप उसको अप्लाई करते हो, या जो चल रहा है उसमें आगे बढ़ो दूसरे एरिया में, और या दुनिया को ये बताओ कि ये गलत चल रहा है, पैराडाइम शिफ्ट कर दो पूरा का पूरा। आप लोगों ने, सब लोगों ने ब्लैक होल थ्योरी पढ़ा हुआ है, सुना होगा। वो ब्लैक होल थ्योरी पे जिसको नोबेल प्राइज मिला, उसने बाद में बताया कि गलत है, मैं गलत जवाब रहा हूँ, और आप उसको नोबेल प्राइज दे चुके हैं, इसको ब्लैक होल स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं, सर रियली सॉरी, भाई सही गलत है, हमको ये समझता नहीं ये गलत है, उसको समझाएंगे इसको ये गलत है, ऐसा कुछ हम लोग जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं उसको ब्लैक होल बोलते हैं। ब्लैक होल का आनंद नहीं आता, देयर आर मेनी यूनिवर्सेस, ऐसे कई पृथ्वी चल रहे हैं, कई शिवाजी लड़ रहे हैं पीछे में कई टाइम जोन में, अभी शिवाजी के तो पैदा भी होने के, कई लोग हमारे से आगे जा भी चुके हैं, ये सब चीजें हो रही है, तो कहीं आपको पता नहीं है। तो जब पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया तो ब्लैक होल थ्योरी स्क्रैप हो गई, कोर्सेज से बाहर हो गया, कॉस्मो आ गया, तो फिजिक्स वाले को मालूम होगा पूरे का। आप जब बात को समझिए, आप अगर वो रिसर्च करते रहेंगे तो आप चीज़ों के पास जाते हैं, आप उनसे दूर नहीं जाते, आप उनके पास जाते हैं, उनके पास जाने के लिए आपको सोचना पड़ता, जब हम बंद कर चुके हैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, 10वीं के बाद कभी सोचा ही नहीं, शादी भी कर लिया, सोचा सिंपल। व्हाट इज सिंपल कंपैरिजन? एक है बेटा एस्पेक्ट, एक है टूल्स, और एक है यूज, गोल, एग्जाम्पल। प्रोडक्ट में अलग और इसमें क्या है
क्वालिटी टूल दिख रहा है आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा मेरे को आपसे एक क्वेश्चन और पूछना है, ये मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में और मशीनिंग में क्या फर्क है? व्हाट इज प्रोडक्शन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग? अब आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, हाउ प्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। मैं देता हूं, आयरन और मैन्युफैक्चर करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं? Ores are produced. Get got it? Tractors are manufactured or machined? Pizza is prepared, manufactured, machined or produced or क्या होता है? Machine manufactured, produced. Pizza. Assembly. Pizza assembly है. Yes, pizza assembly. आप लोगों ने पिज्जा खाया, फ्री में खाया, शादियों में खाया, जहाँ देखा वहाँ पिज्जा भी ठेले खड़े हो गए, वहीं खाया। घर से पैसे तो नहीं खाया, आपकी पगार नहीं है, ठीक है? मैं तो पूछ रहा हूँ, आपने जो पिज्जा खाया तो असेंबल्ड था, प्रोड्यूस था, मैन्युफैक्चर्ड था कि असेंबल्ड? फिर ध्यान में रखिए, सारे पिज्जा एक जैसे नहीं होते। ट्रैक्टर का असेंबली के पार्ट्स होते हैं, 1200 पार्ट होते हैं। असेंबली चक्का चक्के की जगह पे लगेगा, स्टेयरिंग में भी चक्का नहीं लगाते, मालूम नट बोल्ट बराबर है ना? तो आप लोगों को ध्यान रखो, मैन्युफैक्चर व्हाट इज मैन्युफैक्चर? मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरा प्रोडक्शन यूनिट है, मेरा असेंबली यूनिट है, इसके भी पहले बच्चों को मतलब पता है। क्लियर है? कई लोग जॉइनिंग ऑपरेशन समझते नहीं, पढ़ाते रहते क्लास में, हम लोग को पूछते व्हाट इज जॉइनिंग, वो बताते सर हमारे जॉइनिंग का सीधा एक ही मतलब बताते हो, वेल्डिंग। फटक से बात दिमाग में फटक, वेल्डिंग जॉइनिंग मतलब फोर्जिंग इज नॉट जॉइनिंग, नो सर, फोर्जिंग इज आल्सो जॉइनिंग बट इट इज नॉट वेल्डिंग। मतलब व्हाट इज इट? तो आप लोग ये सब चीजों क्लियर कीजिए, कौन से वाले? मैन्युफैक्चरिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन, टोटली डिफरेंट फ्रॉम मशीनिंग, टोटली डिफरेंट फ्रॉम असेंबली। क्लियर है? ऐसा बच्चों को पढ़ाएंगे तो थोड़ा काम में आएगा, बच्चों से रिसर्च के काम कर रही है, वैसे भी ऑटोनॉमी आ गई है ना हम लोग, ठीक है? वेरी ऑल सिट फर्स्ट लर्न अंडरस्टैंड एंड देन डेवलप। जॉब नहीं मिलेगी बात है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी? अगला क्या है? अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी? सिक्स सिग्मा। अपन ने क्या पढ़ लिया अभी? क्वालिटी। अपन ने क्या पढ़ लिया? गुरुज। और कुछ पढ़े इसके पहले? लीन मैनेजमेंट, लीन वेस्ट क्वार्टर, सिक्स सिग्मा डिफेक्ट क्वार्टर। वेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वेस्ट और स्पीड, ये दोनों अलग अलग वर्ड है ना? अगला वर्ड कौन सा है? अजय। ये क्या है? मीन्स एबिलिटी टू चेंज क्विकली टू मीट कस्टमर नीड। व्हाट इज चेंज? आपके कस्टमर कौन है? आपका प्रोडक्ट क्या है? एज अ टीचर student is your customer. They pay you. Knowledge is your product that you give to them. Okay, students are not products. They are products for industries. They are not customers. Because the company pays them. Now when the students will pay you, they are not your customer, they are your customers. Now what is their product? Knowledge is the only product that you are selling. That is services again. आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं, कागज दे रहे हैं उनको। 4 साल में तुमको कितना समझा? आफ्टर यू कभी कम इन आपको 0 है तो 19 डालता हो, रिजल्ट लाना है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ठीक है ना? व्हाट इज दिस? एज मैन्युफैक्चरिंग में जो कस्टमर को चाहिए, ये आपको कैसे मालूम? फीडबैक है, वो पता ही नहीं है, टीचरों को ही पता नहीं तो बच्चों का तो पता है। मेरा जीवन पूरा कागज नया के लिए हाउ डू यू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स एंड डिमांड्स ऑफ कस्टमर? तीन वर्ड है, एक है नीड्स, एक है वांट और एक है डिमांड। पानी आपकी नीड है कि नीड क्या है? वाटर वाटर। व्हाट इज नीड? वांट क्या है? अच्छा आपको एग्जाम्पल
मेरे को कांच के ग्लास में आधा ग्लास कांच के ग्लास में पानी दीजिए। उसमें नीड वांट डिमांड Want the glass. आई वांट द ग्लास और डिमांड कितना है आधा। तो आपको नीड वांट डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा। आज के बच्चों को जॉब अगर देना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा वाला एजेंट में सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम इंडस्ट्री 4 है। दे विल नॉट बी रिक्रूटेड इफ यू आर थिंकिंग यू माय ड्रिलिंग, बोरिंग, ब्रोचिंग, लेथ वर्क, रीडिंग ऑपरेशंस को पढ़ा के, वेल्डिंग पढ़ा के बच्चों को जॉब दिलवाएंगे तो आपकी जरूरत ही नहीं है इधर में इंडस्ट्रीज की। वो आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पता रहे व्हाट इज रीडिंग, हमारे को टेस्ट टाइगर वाला दिस इज द रीडिंग ऑपरेशन, बोरिंग, ब्रोचिंग, लेथ ऐसा करके। तो आप जब कोड डिजाइन करोगे तो हम कस्टमर के नीड वांट मालूम करते हैं बिफोर द कस्टमर वांट्स। देखिए कस्टमर को जब तक समझ में आए उसके पहले ही क्या करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस कर लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर करने बैठे आप तो आप लैगार्ड नहीं करोगे, आप पीछे नहीं रहोगे। मैक्सिमम ऐसे दिख रहा है जिनके बच्चे तो हैं, है ना मैडम, हम लोग का बच्चा रोने का खाना बनाना शुरू कर देते हैं, कैसे मालूम पड़ता है आपको? अंदर जाता है, ठीक है, हमको मालूम पड़ जाता हो इससे। आज ये इस तरीके से अदरक कूट रही है, इनका लग जाने वाला है, अंदर से फीलिंग आती है, ठीक है। आज का दिन पहला जाने वाला है, मालूम पड़ता आपको अदरक के कूटने के आवाज से, ठीक है, ठक 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 आवाज बेटा लाओ मैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट शी इज डूइंग, हमको पता है उसको लेके जाना है कहाँ पर, विंटर वेकेशन आ रहा है ना, आप लोग अभी ढाई लाइन जा रहा होगा, आप मुझे बताइए ये पॉइंट जो है कौन सा वाला, नीड कस्टमर्स व्हाट, मैंने आपको वांट नहीं बोला, आपको डिमांड भी नहीं बोला। जब तक नीड को नहीं समझोगे कस्टमर के तब तक आपका कुछ भी चलने वाला नहीं। आप मेरे से लिख के ले लो विदिन 1 ईयर there will be no service providers, no towers available. आपके पास फोन रहेगी नहीं, ये फोन आउटडेटेड हो चुके हैं, there is no need of phones now. आप 4G, 5G, 6G चक्कर में मत जाओ, स्टार्लिंक आ गया है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नेटवर्क जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेगा। उसके लिए भी घर बनने हैं, कौन सा पेट्रोल वर्क बैठे जमीन पे ऐसे बैठे कीजिए, उस लेवल पे जा रहे हैं। डू द कस्टमर्स नीड इट, उसकी डिमांड जनरेट कर देंगे लोग, कौन देख लेना धीरे धीरे आपके जितने फोन से ऑपरेट रहेंगे तो म्यूजियम की चीजें हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड, जब आएगा ऑफिस 1 घंटा हो गया होगा, ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ कस्टमर्स बिफोर दे नो समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू कम। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने वो पुरानी झाड़ू यूज करी, हमारे वो नहीं करते थे, याद है वो अभी भी शायद मिलती है वो, कौन सी झाड़ू बोलते हैं उसको? एक तो वो लंबी लंबी के रहती है, एक ऐसी रहती है ना, आप सब ने यूज किया, मेरे भी यूज होता है, ठीक है, दूसरी बात मेरे भी यूज होता है, ऐसा पूरा यूज होना झाड़ने वाली, ठीक है, वो यूज। आजकल वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर कब यूज होगी, कब यूज में आएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, आप समझते हो, उसका नॉलेज रहेगा इसका हाउ टू ऑपरेट। कई लोगों ने वैक्यूम क्लीनर लिया है, घर में रखा हुआ है, उनको भूल गए कहाँ पे रखा हुआ है, ये कम है तो कभी उनकी बेटी क्या बेटी की शादी में उनका और अरे इधर मेरी शादी में लगा ऐसा रहता है, क्योंकि आप लोगों ने नीड तो जब वो कर ली थी क्या, पर आप समझ नहीं पाए थे कि इसको ऑपरेट करना कितना डिफिकल्ट है। हमने कभी सोचा था कि हमारे पूरे बैंकिंग में ही हर काम मोबाइल से छोटे से गैजेट में आने वाला है, हमने सोच लिया वी न्यू इट, एटीएम कार्ड कितने यूज करते हैं, यूपीआई है सबके पास, आप समझ रहे हो मेरी बात को, धीरे धीरे हाउ वी आर गोइंग। अरे घर जाके अपने आपके हस्बैंड को देखना, they will not talk to you, they will come straight away sit and आप लोग 4 बार बोलेंगे तो मोबाइल दे देते हो, कन्वर्ट कर देना खींचिए
ऑन है, टीवी ऑन है। घर में भी ऑन है, घर में ओनली एक ही लाइट। And treat your husband like your slave. If you don't treat them, then you will take them. I'm telling you very clearly. Learn from it. देखो, simple. They can change. आप लोगों ने जितने भी प्रॉब्लम पढ़ा है, उसमें प्लस सी लिखा है, प्लस कॉन्स्टेंट। ये पढ़ते हो आप? जितने भी फॉर्मूले पढ़े, y is equal to mx plus c is a constant or constant. Or the constant changes with the line, with the slope of the line. Have you ever thought on this? Is a constant that has to be a constant everywhere? For the constant, it changes with time. अगर आपने बोला स्लोप चेंज कर दिया, लाइन का स्लोप चेंज कर दिया, y इक्वल टू mx है ना, y x स्लोप चेंज किया कि c चेंज होता है, c भी चेंज होता है, और द चेंज, तो द चेंज का कांस्टेंट इज द चेंज। आप समझ में आ गया आपको? वैसे इधर में कैन चेंज डिजाइन इन बेस, right? Make small batches based on fashion. और भी आप लोगों को what is the difference between fashion and what is the trend? Fashion किसको बोलते हैं, ट्रेंड किसको बोलते हैं? Are the same? सर आपका ट्रेंड चल रहा है, आजकल फैशन चल रहा है, आपके दोनों सेम। ट्रेंड का मतलब होता है, हम लोग जब छोटे थे तो कभी जब जीन्स पहने तो हमको हमारे माता पिता जी के साथ अड़ोस पड़ोस के लोग भी मारते, लड़कियों को तो सवाल ही नहीं, सोचने का ये निकाल दिया। और अभी जीन्स से सच कपड़ा भी वो अच्छे में आता है, उनका हमारी बेटी जीन्स पहनती है, शॉर्ट्स पहनी है और अच्छे कपड़े में उनका। तो ट्रेंड अगर आप देखे जाओगे 1950 से जीन्स का ट्रेंड बढ़ते ही है, आप समझ रहे हो? तो हमारे बीच में कहीं पे प्लाजो आए थे, वेल बॉटम्स आए थे, अभी आप देखो कपड़े रहते हैं, इनको हम फैशन बोलते हैं। फैशन क्या होता है, आता और जाता है, पर ट्रेंड ना एक बार तरफ को ट्रेंड चलते रहते हैं। तो अगर आप देखोगे कि हर एक इंसान के पास तो लेडीज और जेंट्स और जींस का कोई कपड़ा हो घर में है ही, एंड नोबडी फाइंड्स इट ये अच्छा नहीं है, ऐसा कोई कभी नहीं बोलेगा। रादर इट वाज बेटर, कौन सा वाला? हाँ, जींस के ऊपर वो फाड़ फूट गया, वो फैशन है, ठीक है ना? और हमारे टाइम पे जींस था तो उसमें पैचेस लगा करते थे, कौन सा वाला डिजाइन से एम्ब्रॉयडरी करते थे, दैट लुक गुड। अब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट मे बी अ फैशन कि आप फटे हुए लेके जा रहे हो, डज नॉट लुक। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर यू एग्री विद मी और नॉट, तो वो उतना अच्छा फैशन नहीं है, धीरे धीरे चेंज है। कौन सा? तो फैशन क्या होता है, आता और जाता है, इसलिए हम हमेशा ट्रेंड की पढ़ाई करते हैं, और ट्रेंड हमेशा लीनियर होना चाहिए, इसी पक्का करना चाहिए। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उसकी डिमांड भी क्या होती आनी चाहिए, बढ़ती आनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड, ठीक है? इंडस्ट्री 1, अभी अपन इंडस्ट्री 4 पे आए थे, अपने 4 थे, इंडस्ट्री 1, 2, 3 और 4। अभी मैंने आपको 3 चीज बोला था, कौन सा वाला? एक मैनुअल, एक आपको बोला था मैकेनाइज्ड, एक बोला ऑटोमेट, और अभी एआई। तो आपके ख्याल से अभी इंडस्ट्री 4 कौन से जनरेशन में चल रहा है? आपको समझ में आ गया क्या यहाँ पर ह्यूमन्स की जरूरत है क्या? तो आप लोग के स्कूल में, आपके कॉलेज में एआई का कोर्स है क्या? उसको रखना चाहिए, बुक करना चाहिए, तो अगर रहेगा तो आप नहीं रहोगे। When there is no human interface between the computer and the machine understands what are the problems in the computer. The computer is a machine is a computer, machine is a CPU. आप समझ में आ गया? जैसे ही प्रॉब्लम आता है मशीन तुरंत ट्रांसमिट करती है किसको? कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर वाले मेरे लिए तकलीफ है, कंप्यूटर स्कैन करता है, तुरंत डिसीजन देता है कि तो हमारा आता है, बराबर है? तो कौन लाया वो इसमें? ह्यूमन। जब ह्यूमन इंटरफेस रहेगा ही नहीं इसमें, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो? तो सोचिए, तो क्या पढ़ाना चाहिए नहीं? अगर आप नहीं पढ़ा तो कोई और पढ़ेगा, तो आपने पढ़ाना चाहिए कि
अगर कोई और पढ़ाएगा तो उनको आएगा, आपको नहीं आएगा। अगर उनको आएगा तो आपको नहीं आएगा, तो पढ़ना चाहिए ही नहीं। उनको आएगा तो कुछ जॉब मिलेगी, आपको जॉब तो फिर रखना चाहिए। इसको सही बात है, मजाक चलेगा चलेगा, ठीक है। ये इंडस्ट्री 3, इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 4 ऐसा जो बहुत मस्त समझ कही है कि इंडस्ट्री 4 में ह्यूमन इंटरफेस क्या होने वाला धीरे धीरे। आप हो या नहीं हो, धरती में बोल लो क्या दे। ये इंडस्ट्री 4 मतलब पढ़ाया तो कम्युनिटी में लिया है, उनकी एक्टिविटीज है, ऐसी सर्विस की तो मैंने देखा नहीं है, तो आता है मतलब आज कॉपी करके लाया, ऑफिस से करके लाया था कि आपको सब कुछ होना चाहिए पीछे। अच्छा तब तक मेरे को ठीक है। क्या लिया की आईडिया स्मार्ट कनेक्टेड फैक्ट्रीज यूजिंग IoT। आपको एक बताया एक ब्रांच है जिसका नाम है IT, एक ब्रांच है जिसका नाम है IoT, एक ब्रांच है जिसका नाम है कंप्यूटर, एक नाम है जिसका नाम है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एक है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्या फर्क है IT में और कंप्यूटर? Only the name either I have understood nor my students, we are great people। IT का एक पार्ट है कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब हाउ द इंफॉर्मेशन हैज टू बी पास्ड फॉर what we will be needing, that will use IoT, that is Internet of Things। What are those things? That will involve machines, that will involve टेक्नोलॉजी। तो आपके ख्याल से ये जो IT है वो अच्छा है जिसमें इंजीनियरिंग वाला पूरा का पूरा, कि एक ऐसा ब्रांच है जिसमें इंजीनियरिंग का कोई अता पता ही नहीं, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिकली लैंग्वेजेस, जैसे आप हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, उत्तरी बोलते हैं, तो सुनते सुनते समझते नहीं, ठीक है ना। वो आप नहीं करो, आपको जो भी भाषा है वैसा भी भाषा है, C++ वगैरह, DBA, जावा वगैरह, कोई सब भाषा है, कोई भी पढ़ सकता है। उसको 2000 रुपये में बाहर मिल जाते हैं कोर्स, जिसके लिए अपन लाख रुपये यहाँ पर वहाँ 1 महीने पढ़े थे, यहाँ 4 साल लगे। उनको भी कोई जॉब मिलती, हमको भी कोई जॉब मिलती। कंपनी वाले देखते नहीं कि आप बीटेक वगैरह आता कि नहीं देखते, बराबर है कि। तो मेरा एक प्रश्न है, ये भाषा जरूरी है? मगर भाषा कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे आप। मैं आपको एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन क्या है। ऐसा करते क्या होता है, ऐसा किया तो हमारे लड़के बुरा ये सारा इम्पोर्टेंट लड़कों को देखना। अगर आप सोचते चाहे अच्छी बात कर रहे हो गड़बड़ है, ठीक है। इंडस्ट्री को क्लियर हो गया। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट आर द चेंजेस दैट यू हाउ यू चेंज। आपके कॉलेज में भी चेंज चाहिए ना, आप लोग इंटीरियर करवाते हैं, हाउ डू यू चेंज, व्हाट मेक्स यू चेंज। चेंज कैसे करते हैं, इज रिप्लेसमेंट चेंज। आप लोगों को पता है जब एक सभी ने पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। क्या पढ़ा है आपने, रिलायबिलिटी वर्ड पढ़ा। एक होता है मेंटेनेबिलिटी, एक होता है रिलायबिलिटी, एक होता है रिप्लेसमेंट। जब हम मैकेनिकल वालों की दुनिया थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टाइम पे, तब रिलायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। तब क्या था केवल मेंटेनेंस, तब क्या था केवल आपको पता चल जाता था कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर से आपकी गाड़ी की आवाज पापा आ रहे हैं, वो आपको पहले से इंडिकेट करता था। क्या हमारी कोई भी मैकेनिकल की चीजें तुरंत फेल नहीं होती, वो आपको पहले से इशारा करना शुरू कर देती है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। आपका पंखा, अगर आपके पंखे में ये चिपका हुआ है, क्या बोलते हैं इसको,
एजेंसी वाले, तो वो बेरिंग पे असर करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि बेरिंग का आवाज आने लगता है, बराबर है। कोई भी पंखे को 1 या 2 पे स्टार्ट मत कीजिए, हमेशा हर पंखे को 5 पे स्टार्ट कीजिए और उसके बाद उसको वापस 6 पर लेकर आइए, क्योंकि वो स्पीड के लिए बने। आप रेजिस्टेंस पहले से दोगे जलेगा, भले आपको लगे कि मैं 1 पे स्टार्ट करके देता हूँ, 5 पे रखिए, स्टार्ट कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम बात कर रहे हैं चेंज की, तो जब रिलायबिलिटी का होगी, जैसे ये लाइट से अभी चालू हुआ, बंद किया, अभी चालू किया, बंद हो गई, क्या हो गई? तो वहाँ फेलियर हो गई, सडन फेलियर हुआ। तो ये रिलायबिलिटी का कंसेप्ट कब से आया? जब से इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद रिलायबिलिटी था ही नहीं। अब रिलायबिलिटी का रिप्लेसमेंट आएगा, देयर इज नो मेंटेनेंस, सीधा उठाओ उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। समझ में आ रहा है? तो रिप्लेसमेंट क्योंकि उसमें जो कॉस्ट है, कौन सा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमेशा सस्ता रहता है आपके पैसे मेंटेनेंस। आप लाइट लेके जाओ, आपके घर पे नल है, नल वाला आता, आपका नल 250 का, उसके उसका 300 रुपये। इसका घर में पानी लीजिए, कुछ सीखिए, कुछ करिए, ऐसी भी नौकरियाँ जाने वाली है। अगर बहुत ज़्यादा आपने चार्ज करना शुरू किया तो लोग आप घर में भी बनाएंगे, खुद ही कर लेंगे, और चीज़ें ऐसे बननी शुरू हो गई है कि आप जाइए, पहले के पाइप को काटना पड़ता था, छीलना पड़ता था, आपको यार थ्रेडिंग करना पड़ता था। आपको सीधा उठाओ, कोई भी कर सकता हूँ, आपको सिर्फ ले आने का, कुछ भी नहीं करना, इतना ज़्यादा फिक्स है। पूरी की पूरी गाड़ी में एक ही साइज का रहता था और एक ही पाना रहता है। ये पानी में पूरी गाड़ी में, आपकी गाड़ी में देखना, और आपकी देखते तो दूर की देखना, आपके उसमें एक ही पानी है। इसका मीनिंग क्या है? जितने भी नट है मेरी गाड़ी के, वो कितने खुलते हैं, वो एक ही पानी। इमेजिन लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज देयर। सो इफ यू डोंट चेंज, यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड उसमें? चेंज। क्या लिखा है? तो चेंज कैसे करते हैं मेरे को नहीं पता। मैंने तो अपनी डायरी छोड़ दी है कौन सी वाली पढ़ाने की, मैंने टाइम में लिखा है प्लेसमेंट में। मेरे को पता है 4-5 साल बचे, 4-5 साल तक कंपनी को बच्चों कंपनी लगेगी, उसका हम भी लगेगी, वहाँ भी ये आएगा। आप डेटा डालिए, कंपनी चेक करेगी, उनकी रिक्वायरमेंट क्या फॉलो करेगी, इवन वी आर ऑल्सो डूइंग इट। ओके, सो हाउ यू चेंज, इट इज कॉल्ड टू लुक एट। ठीक है, इंडस्ट्री 4 कौन सी वाली है? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जितने मैकेनिकल के ब्रांचेस कोर्सेज हैं सर, दे शुड बी ऑन IoT ओनली। यू ऑल सिट, brainstorm, retrospect, जो करना है करो, but the courses should be on IoT only, IoT based. If you are not changing, if you continue with what design of क्या बोलते हैं springs और ये क्या बोलते हैं जो आपके मशीन डिजाइन नॉर्मल वाले शाफ्ट सब कोई जगह देना नहीं है, they don't want it, उसके सब के ये बन गए क्या सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या है? AI। तीसरा क्या है? रोबोट। चौथा क्या है? बिग डेटा। आप लोग LLM पढ़ते, इस पे काम करिए, ये आपके काम की चीज है। नंबर 4, अगर नौकरी बचाना है, कॉलेज चलाना है, इंजीनियर बनाना है, तो LLM में ही काम कीजिए। मेरा आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, गो बैक टू लाइब्रेरी, स्टार्ट रीडिंग। हम लोग लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना भूल गए, और नोट्स बनाए हुए हम वही पढ़ाते हैं, जब नए लाइब्रेरी वाले आते हैं ना, तो आपको जब आपका फाइल खोलते हैं, दे डोंट एक्चुअली चेक कि वेदर यू आर कंडक्टेड द प्रैक्टिकल्स और नॉट, दे चेक व्हाट प्रैक्टिकल्स यू हैव टेकन। ठीक है, वो बड़ा IIT वाले आता है, और IIT वालों में कोर्सेज हर महीने चेंज होते हैं। इट इज नॉट लाइक द ईयर और ये करते हुए दे कम अप विद न्यू आइडियाज, न्यू सजेशन, न्यू कोर्सेज, एंड सडनली दे आर आउट, क्योंकि चेंज हो रहा है ऐसा मार्केट में। वो पहले ही पूछते हैं ओके शो भी का प्रैक्टिकल, तो आप क्या करते हैं? वहाँ चेक करते हैं, सर मैंने यहाँ राइट मारा था, लैंग्वेज डाला था, ये है ऐसा नहीं। वो देखता आपका CO, PO, PSO, ये क्या हो, वो पूरा चेक करेगा, वो पहले पूछेगा प्लेसमेंट वाला पूरा एट दैट इज आउटकम के they carry with them, they are nobody, they are people who come and grade you। जजमेंट के लिए टीम दूसरी टीम बैठी हुई है, कहाँ पे तुमने कितने मार्क्स दिए। ठीक है, अगला पॉइंट होता है क्राउड वर्किंग।
क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्लाउड? नीले का कंप्यूटर हमने ये व्हाट इज क्लाउड? कितने बदमाश टीचर है यार ये सारा क्लाउड कंप्यूटिंग का बड़े हमको पता नहीं क्लाउड क्या है। बादल क्लाउड व्हाट इज बादल? व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा? वो क्या होता है ना पता ऐसा लैंग्वेज है कुछ नहीं क्लाउड हो यू कैन रिप्लाई विद इट व्हाट इज क्लाउड? Cloud computing is providing the services to the customer over ये internet. मैडम क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का ब्रांच है मैडम एक लाइन में खत्म हो जाएगा। क्रिएटिंग लाइक एक आर्टिफिशियल स्पेस जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करके एक्सेस उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड कहाँ पे स्टोर करते हैं? इट इज ऑन इंटरनेट। वही मैं बोल रहा हूँ कैसे कहाँ Virtual machine. ये किसके दिमाग में आया होगा? हवे में है कहीं स्टोर्ड है कहीं पे डेटा सेंटर अगर वो डेटा सेंटर क्रैश हो गए तो Virtual machine. मैडम आर दे वर्चुअल मशीन आर डू दे एग्जिस्ट? कैन यू रिट्राइव द डेटा इफ द सिस्टम इज क्रैश? यस हमको बोला यस हाउ देयर इज ऑलवेज अ बैकअप ऑफ बैकअप हो आई नॉट सेकंड ऑफ बैकअप मैं बोला सब खत्म पृथ्वी खत्म मैं बच गया पिरामिड का पैसा हो जाए अब मेरे को डेटा ट्रेन करना है मेरे पूर्वज कौन थे मेरे पास कोई सिस्टम नहीं हाउ डू आई रिट्राइव? हम लोग बेसिक्स पे चल रहे हैं आप कहाँ चल रहे हैं? आप लोगों को एक बड़ा अच्छा न्यूज़ मिला होगा पीछे कि इंडिया इज नाउ सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस। जब उनके नाचेंगे हम सर पे आकर के बैठे आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? पहला यूएस है दूसरा कौन होना चाहिए? चाइना रशिया भी नहीं। अरे भाई जब मिसाइल की दुनिया है तो आपको एयरपोर्ट चाहिए क्यों? वाई आर बी अपन तो खर्चा क्यों कर रहे हैं गाय में? ये फाइटर जेट से फाइटर जेट जाते लड़ देंगे इसमें आइटम मिसाइल जाते हैं। आप बात को समझिए आगे के आप खास टेक्नीशियंस हैं ग्लोरीफाइड टेक्नीशियंस नॉट इंजीनियर। धीरे धीरे बात को समझिए आर्मी इंटरेस्ट हो जाएगी आपकी लड़ाई सैटेलाइट से होगी सैटेलाइट क्रैश किए जाएंगे टाइम स्पेस वॉर बनेंगे आपके सब कुछ बंद कर ऑपरेट कहाँ से होता है? स्पेस से रियल टाइम डेटा देते जाएंगे और जो अपन लोग यहाँ पर पता है कि अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंड्रोम में देगा प्रोवाइडिंग रियल टाइम डेटा को चाइनीज तो पाकिस्तानी एंड व्हेन दे प्रोवाइड डेटा दे आल्सो गिव द सॉल्यूशन आल्सो तो ऐसा करते ऐसा उनको समझता नहीं ना कुछ। अच्छा डाटा मिल करना क्या है इसका? वो वाली बटन दबा कौन सी वाली? ये नहीं दबा वो लाल वाली हाँ इसको नहीं दबा जो ऑपरेटर चलो वही चाहिए वो ऑपरेटर बैठे ये आप लोग जो भी अभी अगला जो इंडस्ट्री फ्लोर में जा रहे हैं सर जो भी मैकेनिकल कोर्सेज हैं इन 5 कंपोनेंट को ध्यान में रखते हैं और ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो ये सब खास कर हैं रीमिंग बोरिंग रोचिंग ट्राई टू कंप्लीट इट इन 2 or 3 lectures don't take 40 lectures for it you are not needed ये सिंपल कंपैरिजन किया था मैंने इंडस्ट्री 1 से इंडस्ट्री 4 तक। इंडस्ट्री 1 में क्या होता था कब होता था कैसे होता था क्या लगता था और कौन कौन थे। उसके बाद ये सिग्मा लेवल है एंड वन लास्ट लाइन बिफोर आई क्लोज माय लेक्चर कि इंडस्ट्री 4 किसको बोलते हैं और मैं पढ़ा दिया मैंने आपको सिर्फ प्रेशर के लिए है। दूसरा लीन मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलते हैं इसको बता दिया मैंने 6 सिग्मा क्या था और एजिल क्या है। ठीक है एक लाइन में इंडस्ट्री 4 क्या बोलता है? प्रोवाइड डेटा एंड स्मार्ट इंफॉर्मेशन। लीन एलिमिनेट्स वेस्ट। 6 सिग्मा कोर्सेज
are high quality and agile are quickly adaptable to change. ठीक है? And these are the example. And one line summary ऐसी है कि industry 4 smart tools, lean, low waste, Six Sigma, high quality, agile, fast change. And इसको अपन कैसे आपस में जिससे रिलेट कर रहे हैं. ठीक है? So this is my conclusion. Okay, I have read this. Industry 4 provides smart, connected tools like sensors, AI, robots, and real-time data. ये चार चीजें कवर करी. दूसरा, lean manufacturing uses the tools to eliminate waste. Six Sigma is a data tool, data to ensure high quality. इसकी जरूरत नहीं, ये आपका quality बन जाता है. और चौथा क्या है? Agile. It uses same tools to respond quickly to customer needs. I am not saying about demand and want. I am only about needs. And overall is this, and this is my conclusion. Okay, thank you. Thank you, sir. Now, I would like to invite Dr. R.K. Mohane, sir, to present memento to Dr. Mohane, sir. Thank you, sir, for the wonderful session. Thank you for delivering such an insightful and thoughtful provoking session. I hope this session will put a transformative impact on all of us. Thank you and have a nice day.